all those watching us online, thank you so much for joining us this evening. और जो कोई हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, धन्यवाद आपका कि आप हमें शाम को इस समय जुड़ पाए। You may not be hearing from Paul this evening, but you have Timothy with you. आप पौलुस से नहीं सुन रहे हैं, लेकिन तिमुथियुस आपको बता रहा है आज का वचन। Let's start this evening by reading something from the Word from Psalm 91 verses 1 to 10. Can we read it together? और भजन 91 उसके 1 से लेकर 10 तक हम एक साथ पढ़ेंगे। Okay. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। He shall cover you with the feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day. तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। Nor of the pestilence that walks in the darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमेन। Amen. आमेन। I want to give you two key words from what you just read. आपने जो पढ़ा अभी तक, उसमें से दो मुख्य शब्द बताना The चाहता हूं। first key word is you shall abide. पहला जो मुख्य शब्द है वो है तू बना रहेगा। And the second is habitation or dwelling place. और दूसरा है निवास स्थान। You know, many people claim Psalm 91. कई लोग भजन 91 को बोलते रहते हैं, अपने ऊपर अंगीकार करते हैं। But this, just like my Apostle Ankit says, the word doesn't work automatically. और जैसे मेरे पिता प्रेरित अंकित कहते रहते हैं इस बात को कि वचन अपने आप खुद ब खुद काम नहीं करेगा। Bible is a book of principles. बाइबल जो है सिद्धांतों की किताब है। Whoever will apply the principle will have the benefit. जो कोई इस व्यवस्था या सिद्धांत को सही रीति से अपनाएगा, उसका लाभ उठाएगा। So this is not like some mantra that you will say every day and then something magically will appear. ये कोई चैंटिंग या मंत्रा की तरह नहीं है कि आप दिन प्रतिदिन बोलते रहेंगे और अचानक जादू की तरह प्रकट हो जाएगा। This is a principle. If you will apply, you will reap the benefit. ये एक सिद्धांत है, जो आप लागू करेंगे आप उसका फायदा देखेंगे। You know, verse 10 says, no evil will befall you, nor any plague come near your dwelling. और 10वीं आयत कहती है, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे या तेरे निवास स्थान के निकट आएगा। Why? क्यों? Because you have made the Lord your dwelling place. वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने परमेश्वर को अपना ठिकाना या अपना डेरा बना लिया है। Amen. Amen. So remember, abiding तो ध्यान रखे, बने रहना and habitation. और निवास स्थान। Okay, when you go out in the street, you see different houses. There are different houses in your colony as well. और जब आप गलियों में जाते हैं, आप अलग अलग घर देखते हैं, आपके गलियों में भी होगा। You see Sharma Nivas, Verma Cottage. You see all that?
तो आप घरों के बाहर नेम प्लेट भी देखते हैं, शर्मा निवास, वर्मा कॉटेज इत्यादि. right? So what does that tell you? ये शर्मा जी का घर है. ये क्या बताता है आपको कि दिस इज द हाउस ऑफ मिस्टर शर्मा? If you see some kids playing inside their house, अगर आप बच्चों को वहां पे खेलते हुए देखेंगे उस घर में, what do you think? आपको क्या लगता है? ये शर्मा जी के बच्चे हैं. That these are Sharma ji's kids. Right? Now, the signage outside the house tells who owns the house and who does the people inside belong to. और जो बाहर चिन्ह या पट्टी लगी हुई है वो बताता है कि ये घर किसका है, ये निवास स्थान किसका है और इसके भीतर जो लोग हैं वो किसके हैं. Amen? So now, I want you to know that your life also carries a signage. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके जीवन पे भी ऐसी पट्टी लगी हुई है, ऐसा चिन्ह बना हुआ है. Turn with me to Exodus 12, verse 7. आप मेरे साथ निर्गमन उसका 12 और 7वीं आयत खोलें. Yes. Come on, let's read this. And they shall take some of the blood and put it on the 2 doorposts and on the lintel of the houses where they eat it. This is, yeah, go ahead, read. आइए साथ में हिंदी में पढ़ेंगे. तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं. Okay, now this is God telling the Israelites ये परमेश्वर इजरायली जनों को बताता है for the Passover उस फसह के बारे में that they would take a lamb, slay the lamb, put the blood on the doorpost, कि वो एक मेमना लेंगे, उसकी बलि चढ़ाएंगे, उस मेमने का लहू चौखटों पर लगाएंगे और अलंगों पर. okay, and they would eat the flesh of the lamb. और उस मेमने को उसका मांस खाएंगे. Now, you cannot disconnect the two things, the doorpost and the house. आप घर और उसकी चौखट को अलग नहीं कर सकते. Okay? Have you, how many of you have seen the movie Dhamal? You remember that scene when Ritesh Deshmukh is hiding behind this door? Right? That's what you get when you separate the house and the doorpost. अगर किसी ने धमाल मूवी देखी है तो एक सीन है, एक दृश्य है जिसमें रितेश देशमुख सिर्फ एक दरवाजे के पीछे खड़ा होता है. अगर आप चौखट और घर को अलग कर दें वो उसी तरह का कुछ दृश्य बनाता है. Okay? Jesus said, I am the door. यीशु ने कहा मैं ही द्वार हूं. Okay? And the church is the house of God. और कलीसिया परमेश्वर का भवन है. You cannot separate Christ and the church. तो आप जिस तरह द्वार और घर को अलग नहीं कर सकते, आप मसीह और परमेश्वर के भवन को अलग नहीं कर सकते. You cannot separate the door and the house. You cannot separate the head and the body. जैसे आप सर और शरीर को अलग नहीं कर सकते, आप घर और द्वार को अलग नहीं कर सकते. Amen? Now, if I took the blood of that lamb and put it on Sharma ji's house and then go inside my house, will I be safe? अगर मैं मेमने के लहू को शर्मा जी के घर के बाहर लगा दूं और उस घर के अंदर चला जाऊं तो क्या मैं सुरक्षित रहूंगा? My relationship with another believer who goes to church does not guarantee Psalm 91 for me. मेरा संबंध एक दूसरे विश्वासी के साथ जो कलीसिया जा रहा है, सिर्फ उसके साथ मेल मिलाप या दोस्ती रखना, वो मेरे जीवन में उद्धार या सुरक्षा की गारंटी नहीं देता. I must, okay, if I put the blood on the doorpost of my house and then I stand outside my house on the day of Passover, will I be safe from the angel of death? अगर मैं फसह के दिन मेमने के लहू अपने घर के चौखट में लगाऊं और मैं घर के भीतर होने की जगह मैं घर के बाहर रहूं, तो क्या मैं उस मृत्यु के दूत से बचा रहूंगा? नहीं. The condition was you must apply the blood on the doorpost and stay inside the house. परमेश्वर की शर्त ये थी कि जब तुम मेमने का लहू चौखट पर लगा लो, जिस घर के चौखट पर लगाते हो उस घर के भीतर रहो, बाहर नहीं. Tell your neighbor, stay inside the house. अपने पड़ोसी से कहें भवन के भीतर रहो. Amen? Amen. This is the Atmik Goshen that my father was talking about. ये है वो स्पिरिचुअल गोशेन जो हमारे पिता हमसे बता रहे थे. When the blood of the lamb is on your life and you're inside the house of God. कि जब
परमेश्वर के मेमने का लहू आपके जीवन की चौखट पर है और आप परमेश्वर के भवन पर हो। This is when the Bible is saying in Psalm 91, the arrow that flies by the day and the pestilence that destroys in the night. और भजन 91 में जैसे कहता है, वो जो तीर दिन में उड़ते हैं और जो महामारी महारोग जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, It will not come near you कि वो तेरे निकट नहीं आएगी, because आप परमेश्वर जी के बच्चे हैं, उसके घर के अंदर रहते हैं. because you are the children of the Most High God and you live inside His house. Amen. Amen. All right, say this after me. The power of death will never overcome me and my family. I am planted in God's house. मेरे पीछे दोहराएं, मृत्यु की ताकत मेरे और मेरे परिवार पर कभी प्रबल ना होगी। मैं परमेश्वर के घर में बोया गया हूं। Amen. Hallelujah. So, you understand the door and the house and what happens when you abide, right? Okay. तो अब आप समझ गए हैं घर, उसके चौखट और घर के अंदर बने रहने के बारे में। ठीक है? Let's hear from Jesus. What does he have to say about abiding? अब यीशु के वचन सुनते हैं कि वो क्या कहता है बने रहने के बारे में। John 15, यूहन्ना 15 verse 4 onwards we'll read. चौथी आयत से हम पढ़ेंगे। Okay, Jesus he says, the first word he says here is जो पहला शब्द यहाँ पर कहता है, abide in me. वो कहता है बने रहो मुझ में Okay, and I in you. और मैं तुम में। As a branch cannot bear fruit of itself जैसे डाली दाखलता में बनी ना रहे तो फलवंत नहीं होती, unless it abides in the vine. जब तक वो दाखलता में बनी ना रहे। Neither can you unless you abide in me. वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो फल नहीं सकते। Okay, what does a branch have to do in order to bring fruit in the season? एक शाखा को क्या करना पड़ता है कि वो फल ले आए ऋतुओं में? Take vitamin D का pills, क्या उसको विटामिन डी की गोलियां खानी पड़ती हैं get some iron, या No, आयरन right. की गोलियां खानी पड़ती हैं? nothing doing, कुछ नहीं करना, just abide. उसको बस बने रहना है। Amen? Amen. Okay, let's now verse 5 actually says you will bear much fruit. God's will for you is not just fruit. It is much fruit. और 5वीं आयत में यीशु कहता है कि तुम बहुत फल लाओगे। वो सिर्फ थोड़े बहुत फल लाने की बात नहीं कर रहा, वो बहुत ज्यादा बहुतायत के फल लाने की Yeah, बात let's कर look at verse 6. रहा है। अब 6ठी आयत को देखते हैं। It says, if anyone does not abide in me, आगे वो कहता है यदि कोई मुझ में ना बना रहे, he is cast out as a branch and is withered. वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। Okay, so let's reverse this. अब इसका उल्टा विपरीत करते हैं। If anyone abides in me, कोई यीशु में जो बना रहता है he will not be cast out उसको बाहर नहीं फेंका जाएगा and will flourish. और वो फलवंत रहेगा। Easy, आमेन। आसान है। right? Let's look at the next verse, verse 7. अब अगली आयत पढ़ेंगे। If you abide in me and my words abide in you, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, you will ask what you earn. क्या ऐसा लिखा है कि तुम जो कमाते हो वो मांगोगे? No, you will ask what you desire, इसमें लिखा है कि तुम जो चाहो, तुम्हारी जो चाहत है वो तुम मांगोगे and it shall be done for you. और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। So if I were to just give you a small pill of understanding abiding, what it does. अगर मैं आपको छोटी सी एक गोली दूं उस समझ की निवास के बारे में, गोली दो हिंदी में sounds very off. When you abide, you become fruitful and very fruitful. जब आप परमेश्वर में बने रहते हो, यीशु मसीह में बने रहते हो, आप ना सिर्फ फलवंत बल्कि बहुतायत में फलवंत होते हो। Amen. Jesus said, I have come to give you life, but life in abundance. यीशु ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं और बहुतायत का जीवन। So his desire for you is always more. यीशु की इच्छा आप सभी के लिए बहुत की है। He said, if you believe in me, you will do greater works than me. और यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में विश्वास करते हो तो मेरे कामों से अधिक बढ़कर तुम बहुत काम करोगे। That's the heart of a father. वो है हमारे पिता परमेश्वर की इच्छा। A father would always want his son to outgrow him. एक पिता की इच्छा हमेशा ये रहती है कि उसका बेटा बढ़ चढ़ के काम करे उससे कहीं अधिक। Amen? Amen. So what do you get by abiding?
तो आप निवास अब बने रहने से क्या समझते You हो? become fruitful and very fruitful. कि आप फलवंत और बहुतायत का फलवंत बनते हो, You flourish. आप समृद्ध होते हो And all your prayers are answered. और आपकी सारी प्रार्थनाओं Yeah. का उत्तर मिलता है। Who wants a life where all your prayers are answered? Amen. कौन ऐसा जीवन चाहता है जिसमें आपके सारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा Okay, हो? quick question. What do you have to do for all your prayers to answer? That's it. आपको क्या करना है कि आपके सारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले? बने रहना है। Because when you abide in his house, okay, a house where Sharma ji himself does not stay is not Sharma ji's house. Okay with that? एक ऐसा घर जहां शर्मा जी खुद नहीं निवास करते हैं, वो शर्मा जी का घर नहीं है। Our God is the living word. हमारा परमेश्वर जीवित वचन है। There are many places, कई जगह but a place where the living word is not exalted is not his house. कई जगह हैं जहां प्रचार तो हो रहा है, लेकिन उसके जीवित वचन का जहां पर उठा महिमा नहीं की जाती, वो उसका घर नहीं है। This is all the more reason why I really honor this place that my father has built. You know, he's given the living word week after week, Rema word week after week, empowering those who were broken down, stricken down, struck down by life, and we see champions walking out of this place receiving that word. Amen. इसलिए मैं इस स्थान का, इस मंच का और आदर करता हूं जो मेरे आत्मिक पिता ने अपनी मेहनत से खड़ा किया है, यहां पर लाया है। उन्होंने हफ्ते दर हफ्ते परमेश्वर का जीवित वचन यहां से दिया है। परमेश्वर का जो कार्यशील होने वाला वचन है उसको हमारे साथ सिखाया है, ताकि जो टूटी हुई जिंदगियां हैं वो बनकर शूरवीरों की तरह जीने लग जाएं। Amen. Bible talks about all the losers, all the downtrodden, all the broken people came to David. और बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, जो सारे हारे हुए निकम्मे लोग थे, जो टूटे हुए थे, वो दाऊद के पास आए। You know what happened to them later on? और बाद में क्या हुआ उनका? The Bible says, the mighty men of David. उनके बारे में इस प्रकार से गवाही दी गई कि दाऊद के शूरवीर योद्धा। Why? Because David said, I love your word. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दाऊद ने कहा कि मैं तेरे वचन से प्रेम रखता हूं। Amen. आमीन। So just know the house where you are, the living word is exalted here. Amen. तो ध्यान रखिए, जिस भवन में आप इस समय हैं, जीवित वचन की महिमा होती है, उसको उठाया जाता है। Okay. Let's read Matthew 16:16. मत्ती 16 उसकी 16वीं आयत पढ़ेंगे। Now, Simon Peter is about to give us a revelation. और शमौन पतरस हमें एक प्रकाशन देता It says, है। Simon Peter answered and said, You are the Christ, the Son of the living God. शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। Let's go to verse 18 and 19. And it says, and Jesus is answering, and I also say to you that you are Peter, and on this rock, on what? On this rock I will build what? So, Jesus, as an architect, as a master builder, is building his church where? On a rock. Say on a rock. On a rock. Okay, so he says, you want to interpret that? Oh, yeah, please go ahead. और यीशु 18वीं आयत में इस प्रकार से बोलता है कि मैं तुमसे कहता हूं पतरस, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो यीशु कौन है? वो कलीसिया, वो उस पत्थर को कहता है कि मैं अपनी कलीसिया, जो सिद्ध आर्किटेक्ट है, जो सिद्ध निर्माता है, वो कहता है मैं अपनी कलीसिया एक पत्थर पर बनाऊंगा। Amen. Okay. Amen. And the gates of Hades, the gates of hell, will not prevail against it. और आगे कहते हैं यीशु कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। Amen. I want you to know something, that the church is built on a rock. मैं चाहता हूं आप इस बात को जानें कि कलीसिया की स्थापना एक चट्टान, एक पत्थर पर हुई है। Amen. Christ is that rock. और यीशु मसीह ही वो पत्थर है। So when you are planted in a church which is built on the rock of Christ, तो जब आप उस कलीसिया में बोए जाते हैं जो यीशु मसीह, जो पत्थर है, उस पर बनी हुई है, you will not be shaken. तो आप खुद कभी घबराएंगे नहीं, कभी हिलेंगे डुलेंगे नहीं। Yeah, you will never be shaken in life. आप कभी भी घबरा नहीं जाएंगे जीवन में। Amen. कभी डगमगाएंगे नहीं। डगमगाएंगे नहीं जीवन में। Amen. Jesus said, you know, a wise man is one who builds his house on a rock. और यीशु ने कहा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपना घर पत्थर या चट्टान पे बनाता है। And then Jesus builds his house on the rock. और फिर यीशु अपनी भवन की निर्माण भी उसी पत्थर पर बनाता है। Because he is wise.
क्योंकि वो बुद्धिमान है। Amen. Amen. Now, if you don't want to be shaken in life, अगर आप जीवन में डगमगाना नहीं चाहते हो what do you have to do? तो आपको क्या करना है? Abide, habitation. तो आपको निवास करना है। Amen. You have to abide in the house, make the Lord your habitation. और आपको परमेश्वर के भवन में बने रहना है और प्रभु को अपना निवास स्थान बना Okay, लेना say है। after me. I am planted in the church that is founded on the rock of Christ. I will not be shaken. मेरे साथ कहें, मैं कलीसिया में बोया गया हूं जो मसीह की चट्टान पर स्थापित है। मैं नहीं डगमगाऊंगा। Okay, again, say this. The gates of hell will not prevail against me and my household. I am planted in God's house. Amen. नरक के फाटक मेरे और मेरे घराने पर कभी हावी नहीं होंगे। मैं परमेश्वर के घर में बोया गया हूं। Amen. 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 Now, Amen. the reason why I stand here today and talk about this is because I have gone through a journey which you don't have to take. और मैं आज यहाँ पर खड़े होकर इन बातों को इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक यात्रा से, एक प्रक्रिया से गुजरा हूँ जो हम सभी को लेनी है, आपको भी। In life, you have two ways to learn. जीवन में दो तरीके से हम चीजों को सीख सकते हैं, Through mentors या तो गुरुओं के द्वारा या मेंटर्स के द्वारा, or through the school of hard knocks. या फिर जीवन में ठोकरों के द्वारा। ठोकरों के महाविद्यालय. Amen. Right? So you can learn through mentors or through the school of hard knocks. अपने से ऊपर गुरुओं के द्वारा या मेंटर्स के द्वारा या फिर ठोकरों की महाविद्यालय से। Is it okay if I don't preach at you and just speak to you about some? Okay. So 2006, I gave my life to Jesus. 2006 में मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। When I first met him, I was super zealous. और जब मैं उससे मिला तब मैं पूरी दीवानगी से भर गया था उसके लिए, But without wisdom. लेकिन बुद्धि नहीं थी उस समय। Amen. And like any young boy who falls in love with a girl, और जैसे एक नौजवान लड़का एक लड़की से प्यार में पड़ जाता है, I was willing to do any crazy thing for Jesus. मैं यीशु के लिए कुछ भी दीवानापन करने के लिए तैयार था। But I did not understand my commitment to him or many things. I mean, yeah, we'll come to that. मैं दीवानगी से उसके लिए कुछ भी करने को तैयार तो था, लेकिन मेरी जो प्रतिबद्धता थी उसके लिए वो समझने की मेरे पास बुद्धि नहीं थी और मैं कई चीजें कर जाता था। Okay, so in 2010, सो 2010 की बात है। I came to Delhi. I'm from Delhi. I came back to Delhi. I was elsewhere. मैं कहीं और था, मैं दिल्ली वापस आया 2010 में। And I started to prepare for civil services. और उस समय मैंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए तैयारी करनी शुरू की। I went deep into psychology and sociology. और मैंने साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की पढ़ाई बहुत गहराई में करी, अध्ययन बहुत गहराई में करा। But my foundations were not solid. लेकिन मेरी जो नींव थी वो मजबूत नहीं थी। And they got shaken up. और वो हिल गए थे, डगमगा गए थे। Okay. My commitment to the Lord got shaken up. प्रभु की ओर मेरी जो प्रतिबद्धता थी वो हिल गई थी। And my love for him, I loved him, but that zeal, that passion left. मैं उससे प्यार तो करता था, मेरे अंदर प्यार तो था, लेकिन वो जो दीवानगी थी, वो आग थी, जो जुनून था उसके लिए, वो हट गया था। I don't know if any one of you can relate, but in my life with the Lord, there was a time when I did not feel like I was born again. आप में से शायद कोई मेरी बात समझे ना समझे, लेकिन एक समय आया था मेरे जीवन में, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने नया जन्म पाया ही नहीं है। Because I didn't have the right understanding of Father. क्योंकि पिता परमेश्वर की सही समझ नहीं थी मेरे पास। I even felt that the Holy Spirit has left me. मुझे ये भी लगने लगा था कि पवित्र आत्मा मुझे छोड़ गया है। Anyone ever been there? आप में से कोई इस तरह से सोचता है या सोचता था? Okay, I want you to know something. मैं चाहता हूं आप इस बात को जानें That He cannot lie. कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता। He said, I will be with you to the end of the world. उसने कहा, मैं संसार के अंत तक तेरे संग बना रहूंगा। I will not leave you nor forsake you. मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। So the world has not ended yet.
संसार अभी तक खत्म नहीं हुआ है, He has not left you yet. तो वो आपको नहीं छोड़ेगा अभी. Amen. Amen. But those 2.5 years were the worst years of my life. 2.5. 2.5 साल पहले परमेश्वर का वचन मेरे पास आया. No. Those 2.5 years were the worst years of my life. Yes. वो 2.5 साल मेरे जीवन में बहुत ही खराब थे. But you know, we learned from the school of hard knocks. तो हम लोग ठोकरों की महाविद्यालय से पढ़ते हैं ना. So the one lesson I learned in those 2.5 years, उन 2.5 सालों में जो एक सबक मैंने सीखा, that was my commitment to Christ must never be shaken again. कि यीशु मसीह की ओर मेरी प्रतिबद्धता कभी भी डगमगानी नहीं चाहिए. Amen. Amen. The journey continues. Say the journey continues. कहीं यात्रा जारी है. Amen. Picture abhi baki hai. Amen. Amen. Now, after I came back to Delhi, after the 2.5 years ended, I started applying for different government jobs. I got selected for one. Some of you might know that. और उन 2.5 सालों के बाद जब मैं दिल्ली वापस आ गया तो मैंने कई सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया और उसमें से एक मिल भी गई थी मुझे. आप में से कुछ लोग शायद जानते भी होंगे. And I was working in American Express at the time. Neha used to be my manager. और मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में काम करता था और नेहा बहन जो है वो मेरी मैनेजर हुआ करती थी. And I got this government job. और मुझे उस समय एक सरकारी नौकरी मिल गई. Now, when you are raised in a middle class family, तो जब हम एक मध्य वर्ग के परिवार में जन्मे जाते हैं, your mom dad have 3 dreams. माता पिता के 3 मुख्य सपने होते हैं. डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सरकारी नौकरी लग जाए. Either the child should become a doctor or an engineer or should have a government job. Amen. Amen. If none of these come to pass, अगर इसमें से कोई भी एक ना हुआ, they just thank God their child lives with them. वो सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि संतान तो है हमारे पास. कि बुढ़ापे का सहारा ही है, साथ तो रहते हैं. I'm sorry if I'm pinching some nerves in that. Yeah, so, but see, by this time when I got the government job, I had learned the lesson that my commitment must not waver. तो इस समय जब मुझे सरकारी नौकरी मिल गई थी, मैंने ये सबक सीख लिया था कि यीशु के साथ मेरी जो प्रतिबद्धता है वो टूटनी नहीं चाहिए. And that is the time when FOLJ Church, the Lord was laying the foundation of this church. और वही समय था जब परमेश्वर FOLJ कलीसिया की नींव को डाल रहा था. Okay, a side note. Totally funny. I did not decide I'll talk about this. Yashvik, I'm sorry, but at the time, FOLJ was not a church. We were meeting from house to house. जिस समय FOLJ पूरी तरह कलीसिया में तब्दील नहीं हुई थी, हम घरों में मिल रहे थे. And I was working in Amex, where Yashvika was also working at the time. और मैं Amex में काम कर रहा था, जहाँ पर पास्टर याशिका काम कर रही थी साथ में. So she met me and we found out that we are both believers. और वो मुझसे मिली और हमें पता चला कि हम दोनों विश्वासी हैं. And so she asked me, what church do you go to? और उन्होंने कहा, किस कलीसिया जाते हो? I said, I don't go to a church. We are meeting. You know, we didn't have a name. There was no family of Lord Jesus name. उस समय कलीसिया का नाम तो नहीं था, तो मैंने कहा हम सब ऐसे ही मिलते हैं और फैमिली ऑफ लॉर्ड जीसस का नाम तब तक रखा नहीं गया था. So I told her, you know, some of us friends, we meet at the weekend. We meet over the weekend and just pray, and God is doing amazing things. और मैंने कहा हम कुछ दोस्त हैं विश्वासी जन जो साथ में वीकेंड्स में मिलते हैं, यानी शुक्रवार शनिवार रविवार को मिलते हैं और साथ में आपस में आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं. So she thought ये कोई weird सा भटका हुआ ईसाई लड़का है. She thought he's a weird lost Christian guy. Yeah, and then the Lord brought her here, and we both are married, and this is the 10th year of our marriage. We are completing 10 years. Yeah. और प्रभु पास्टर याशिका को इनके साथ लेके आया और वो जुड़ गई, फिर इनकी शादी हुई और इस साल उनके 10 साल हो जाएंगे शादी के. उनकी त्वचा से उनकी उम्र का पता नहीं लगता. मेरे लिए आप ऐसा नहीं कह सकते. No English translation needed. Okay, so yeah, I went for this government job where I got selected. तो मैं सरकारी नौकरी के लिए गया जहाँ मेरा चुनाव हो, जहाँ मुझे ले लिया गया था. And in 8 months, 8 महीनों में I said, आपकी नौकरी आपको प्यारी, मैं वापस जा रहा हूँ. I said, go with your job, I am going back. Yeah. So the second lesson I learned. तो दूसरा सबक जो मैंने सीखा, My commitment to my church
कि मेरी कलीसिया की ओर जो मेरी प्रतिबद्धता where है, God has planted me, जहां परमेश्वर ने मुझे बोया है, must be unwavering. वो कभी हिलनी नहीं चाहिए। Amen. आमीन। I learned the importance of being planted in God's house. मैंने इस बात की महत्वपूर्णता को जाना कि परमेश्वर के भवन में बोया जाना क्या होता है। You know, sometimes we just give ourselves a candy. हम अपने आप को सांत्वना देते हैं कई बार। Yeah, so I started looking where I was. I was in Karnataka in a very small place in a district called Koppal, a place called Gangavati. You don't have to translate. So I was in a very small place called Gangavati in Karnataka. और कर्नाटका के प्रदेश में मैं गंगावती नाम के एक छोटे से स्थल में था। I was a geography student. I used to love geography. और मैं भूगोल का Geography का किसी ने student भूगोल था। नहीं पढ़ा, सबने geography पढ़ा यहाँ पे. ज्योग्राफी का स्टूडेंट था और But I never heard about a place called Gangavati in all my life. मैंने ज्योग्राफी तो अच्छे से पढ़ी थी, लेकिन मैंने गंगावती का नाम कभी नहीं सुना And था। here's the crazy thing: when I was there for 8 months, और जब मैं 8 महीने वहां पर था, many foreigners used to come there. And I'm like, तुम्हें किसने बता दिया है आने के लिए? कई अंग्रेज वहां आते थे and I used to think, who told you about this place? एक मेरी तो मजबूरी है, but तुम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? I have to come here, but what are you guys doing here? Okay, so the second lesson I learned is my commitment to my church must not waver. मैंने जो दूसरी बात सीखी वो ये थी कि कलीसिया की ओर मेरी जो प्रतिबद्धता है वो हिलनी नहीं चाहिए, वो डगमगानी नहीं Okay, चाहिए। let's go back to the word. Read Psalm 92. अब हम वचन की ओर वापस जाएंगे, भजन 92 पढ़ेंगे। Let's read from verse 13, shall we? Yeah. 13वीं आयत से पढ़ेंगे। Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. कि वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। Next verse. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. वे वृद्ध अवस्था होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। So when you are planted in the house of God, जब आप परमेश्वर के भवन में बोए जाते हैं, your fruitfulness is guaranteed आपका फलवंत होना गारंटी रखता है and never ending. और कभी समाप्त नहीं होता, यानी आप फलते रहते हैं। Amen. आमीन। Your fruitfulness is guaranteed आपका फलवंत होना पक्का है and never ending. और वो निरंतर होता रहता है। Now, let's read verse 15 very carefully. अब 15वीं आयत को बहुत ध्यान से पढ़ें। To declare that the Lord is upright, He is my rock. That's it. Okay? जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है। You know what happens when you flourish in your life? आप जानते हैं क्या होता है कि जब आप जीवन में फलवंत होते हैं, When you're super abundant, जब आपके पास बहुतायत होती है, your life declares that He is my rock. आपकी जीवन ही घोषणा करने लग जाती है कि यीशु मेरी चट्टान है। Otherwise, वरना क्या होता है, if a believer is in lack अगर एक विश्वासी कमी घटी में है and he goes to his friend who doesn't know Jesus और वो अपने मित्र के पास जाता है जो यीशु को नहीं जानता, and he says, "यार किराए के पैसे नहीं है, can you please lend me 10,000 this और month?" वो कहता है, आई डोंट हैव द मनी फॉर रेंट, क्या तू मुझे 10,000 उधार दे सकता है? And then next month again he goes, "यार I need 15,000, can you help me?" एंड अगले महीने फिर जाता है, कहता है यार 15,000 उधार दे दे फिर से। And then one day filled with the Spirit, and because pastor said go and talk to somebody and call them to church, और एक दिन आत्मा से भर के जब पास्टर ने यहाँ से कहा कि जाओ किसी को कलीसिया बुला के लाओ, they go to the same guy and say, "You know, come to Jesus, bro. My life is changed." और उस दोस्त से कहेगा, यार यीशु के पास आ जाओ, मेरी जिंदगी बदल गई So है। this guy will say, "Bro, you're asking me for money every second month. How has your life changed?" वो व्यक्ति मुझसे कहेगा, तू तो मेरे से हर महीना उधार मांगता रहता है, तेरी जीवन में क्या बदलाव आया है? See, from miracle to blessing. मेरे साथ कहे, चमत्कारों से आशीष तक। Okay? When you're outside the house and you're thirsty, और जब आप घर से बाहर आ जाएं और आप प्यासे हैं, it starts to rain बारिश होने लगती है and you drink some water. और आप थोड़ा सा पानी उस बरसात का पी लें, Praise God for the miracle. चमत्कार के लिए धन्यवाद। When इस you're प्रकार inside की। the house, लेकिन जब आप घर के भीतर हैं, बहुत पानी है पीने के लिए. बहुत पानी है पीने के लिए। Amen। Amen? So when you're fruitful, तो जब आप फलवंत हैं when you flourish, और जब हम फलवंत होते हैं You और give- समृद्ध होते हैं, you give this proof that God is your
rock. तो हम ये सबूत देते हैं कि परमेश्वर मेरी चट्टान है। But what did Jesus put on the church, on the rock? लेकिन यीशु ने उस चट्टान पर क्या बनाया? The church. कलीसिया को बनाया। God built the church on the rock. कलीसिया को ये परमेश्वर ने चट्टान पर बनाया। This is why it's very important to be planted in that church. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कलीसिया में बने रहें। See, when you're fruitful, your Father is glorified. तो जब आप फलवंत होते हैं, किसको महिमा होती है? पिता परमेश्वर When को। you're vibrant in life, और जब जीवन में बहुत ही उत्तेजना रहती है या बहुत ही मजेदार जीवन रहता है, yeah, your रंग भरे हुए हैं आपकी जिंदगी में, हाँ, your Father is glorified. तो Amen? तो जब आपका जीवन पूरे रंग से भरा होता है, यानी बहुत ही अच्छा होता है, पिता की महिमा होती है। जब रंग उड़े हुए हैं, your testimony is nullified. जब रंग भरे हुए हैं, your testimony is established. Amen? क्या बात है। When you are filled with colors, your Father is glorified. But when your color is out, your glory is nullified. Amen. So, you know, your blessing, like Apostle Ankit always says, your blessing is not in Kannada. जैसे प्रेरित अंकित कहते हैं कि हमारी आशीष कन्नड़ा में नहीं है। My blessing was not in the government job. मेरी खुद की आशीष उस सरकारी नौकरी में नहीं थी। Your blessing is not in what you're looking for. आपकी आशीष उन चीजों में नहीं है जिसको आप ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो। They that are planted in the house of God will flourish in the courts of God. Amen. जो परमेश्वर के भवन में बोए जाते हैं, वो उसके आंगनों में फलेंगे फूलेंगे। Your prosperity is directly connected to where God has planted you. Amen. आपकी बढ़ोतरी, आपकी उन्नति डायरेक्ट कनेक्शन रखती है, सीधा कनेक्शन रखती है उस जगह से जहां पे परमेश्वर ने आपको बोया है। Yeah, this is one reason why we are so not insecure about church growth, and God is doing it. Amen. और यही एक कारण है कि हम लोग इतने असुरक्षित नहीं हैं कि कलीसिया की बढ़ोतरी कैसे होगी, क्योंकि परमेश्वर वो कर रहा है। You see, we always say, don't go to the church because it's close to your house. हम हमेशा ये कहते हैं कि उस कलीसिया, किसी भी कलीसिया इसलिए ना जाओ क्योंकि वो आपके घर के पास है। Don't go to a church because your granddad and your dad were going there. इसलिए किसी कलीसिया में ना जाओ क्योंकि आपके बाप दादा उस कलीसिया में जाते हैं। The only reason for you to go to a church, एक ही कारण जो है जिसके कारण आपको कलीसिया आना चाहिए, must be, वो यही होनी चाहिए कि this is where my Father has planted me. This is where I will flourish. This is where I will grow. This is where I'll be abundant. This is where my destiny is connected. Amen. एकमात्र कारण जिसके लिए आपको कलीसिया, किसी भी कलीसिया आना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ बोया है, यहीं पर मैं बढ़ूंगा, यहीं पर मैं समृद्ध होऊंगा, यहीं पर मुझे उन्नति मिलेगी और मैं पिता के दिए हुए लक्ष्य की ओर बढ़ता रहूंगा। Okay, quick question. जल्दी एक सवाल पूछता हूँ। What if there was a withering tree, a dry and withering tree, एक सूखा निर्जल पेड़ है जो, and I took it and I planted in the Amazon forest? और मैं उसको जड़ से निकालकर अमेज़न की जो महानदी है उसके जो जंगल है उसके पास बो देता हूँ। What will happen to a tree in a couple of months? 2 महीने में क्या होगा उसके साथ? It will be green, लहलहा रहा होगा. It'll be green and flourishing and लहलहाता होगा। Right? Amen. So where you're planted is the key. That's important. तो जो मुख्य बात है कि आप कहाँ बोए गए हो, ये बहुत जरूरी है। See, there is a jungle close to Delhi also, दिल्ली के पास भी एक जंगल है, where only jhadi grows. वहाँ सिर्फ झाड़ी उगती है। Right? So going to a closed jungle is not the key. Going to the jungle where your Father has planted you is the key. तो सिर्फ ऐसे जंगल जाना जो आपके घर के पास है वो काफी नहीं है, लेकिन जहाँ पिता परमेश्वर ने आपको बोया है वहां जरूरी है, वहीं आप फलेंगे फूलेंगे। Amen. Amen. So from my school of hard knocks, 2 things I want you to remember today. मैं चाहता हूं आप 2 मुख्य बातों को ध्यान रखें आज। Your commitment to Christ must be unwavering. कि परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह की ओर आपकी जो प्रतिबद्धता है वो डगमगानी नहीं And चाहिए। your commitment to the church where God has planted you must be unwavering.
और आपकी जो कलीसिया में जहां परमेश्वर ने आपको बोया है उसके प्रति प्रतिबद्धता वो नहीं हिलनी चाहिए। I'm quoting Bishop David Oyedepo in saying this. मैं बिशप डेविड ओएडेपो के बारे में बता रहा हूँ। He says like this, if you know वो इस प्रकार कहते हैं कि अगर तुम जानते हो that God has planted you in a church, कि परमेश्वर ने तुम्हें इस कलीसिया में बोया है, एक कलीसिया में बोया है, किसी भी कलीसिया में, and the pastor tells you, get out of this church. और पास्टर बोलते हैं इस कलीसिया से बाहर निकल जा, He says, वो ये कहते हैं hold the pastor's feet and say, I will not leave. उस पास्टर के पैरों पर गिर जाओ और कहो मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा। He says, because the day you kick that place that God kept for you, जिस दिन तुम ठोकर मार दोगे उस जगह को जहां परमेश्वर ने तुम्हें रखा था, you kick out of your destiny. तो उस दिन तुम अपने लक्ष्य से बाहर चले जाओगे। Amen. You know, how many you've read in the book of Jeremiah, it says, God will give you shepherds according to his own heart. Amen. कितने लोगों ने पढ़ा है यिर्मयाह की किताब में कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हें अपने दिल के अनुसार चरवाहे देगा। See, this is why we are so unsecured, not unsecured about this. इसलिए हम असुरक्षित नहीं है इस बात को लेकर। We are so sick. If God has planted you here, अगर परमेश्वर ने आपको सच में यहाँ बोया है, you will be here. आप यहीं बने रहेंगे। Amen. If God has not planted you here, और अगर परमेश्वर ने आपको यहाँ नहीं रखा है, if I visited your house 365 days a year, अगर मैं आपके घर 365 दिन बार बार आता रहता, and it's a leap year, और वो चौथा साल है, you will get offended because I didn't come the 366 day. तो आप 366वें दिन आप उस दिन ठोकर खाओगे क्योंकि मैं उस दिन नहीं आया। Okay, so we are not unsecured about this. तो हम असुरक्षित नहीं है। Okay, come on, say this after me. I will flourish and bring forth much fruit. Even in my old age, I will be abundant and fruitful. I am planted in God's house. कहीं मैं फलूंगा और बहुत फल लाऊंगा, बुढ़ापे में भी मैं बहुतायत से भरा और फलदायी रहूंगा। मैं परमेश्वर के घर में बोया गया हूं। Amen. 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 Okay, you know, I was listening to the church series from Apostle Ankit, मैं प्रेरित अंकित द्वारा सिखाए गए कलीसिया की श्रृंखला के बारे में सुन रहा था, चर्च सीरीज की, and I was very blessed by what he was teaching. और मैं बहुत आशीषित हुआ वो सुनकर जो हमें सिखा रहे थे। Now, what do you do when you find something excellent? और जब आप किसी उत्तम बात को पा लेते हो तो आप क्या करते हो? Shamelessly copy it. आप उसकी पूरी नकल उतार लेते हो। Okay? So turn to Hebrews 10. तो हम इब्रानियों 10 की ओर We'll चलते हैं। read 23 and 25 together. 23 और 25 को एक साथ पढ़ेंगे। It says, let us hold fast the confession of our hope without wavering, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some. आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है। सबकी नहीं, कितनों की रीति है। Okay? So many have a habit तो कई लोग की आदत है of forsaking the assembly of saints. कि वो संतों के इकट्ठा होने को छोड़ देते हैं। You know what they'll get? उनको पता है क्या मिलेगा? A lesson from the school of hard knocks. उनको ठोकरों के महाविद्यालय से एक बहुत अच्छी सबक मिलेगी। They say, we have Christ. We have Christ. वो ये कहेंगे मसीह तो है मेरे साथ, We have Jesus. मेरे साथ यीशु है, We have our Bible. हमारे साथ बाइबल भी है, Why do we need the church? तो हमें कलीसिया में आने की क्या जरूरत? Ritesh Deshmukh. धमाल को याद करें। While they think they are hiding safely behind the door, उनको ऐसा प्रतीत होता होगा कि वो दरवाजे के पीछे छुपे हुए हैं। the gundas come from the left and the right. जो शैतान है वो बाएं और दाएं की ओर से आ जाते हैं अंदर। You know, do not be deceived. तो इसलिए धोखे में ना रहें। Amen. Yeah. So let me ask you. And I'm sorry I'm saying this, but you know,
the biggest reason why people get offended with the church मैं इस बात को जो कह रहा हूँ इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो सबसे मुख्य कारण है कि लोग कलीसिया में ठोकर खाते हैं या कलीसिया से ठोकर खाते हैं, is because somebody didn't greet them in the parking, क्योंकि उनको लगता है कि पार्किंग में किसी ने उनका अभिनंदन नहीं किया, उनका स्वागत नहीं किया, or the welcome team did not smile at them, या जो वेलकम टीम बाहर है वो मुस्कुराए नहीं उन्हें देखकर, or the communion desk people didn't give them the communion, या फिर जो कम्युनियन की डेस्क पर खड़े होते हैं उन्होंने उन्हें कम्युनियन प्रभु भोज नहीं दिया, or the usher did not catch them during ministering time. या फिर जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने उन्हें पकड़ा नहीं जब सेवा हो रही थी यहाँ पर. You know, they don't know the guy at the welcome counter didn't brush this morning, came rushing, so he was shy and smiling. उन्हें ये नहीं पता कि जो सहायक है, जो वेलकम टीम का है, वो सुबह मंजन करके नहीं आया था, वो मुस्कुराने में शर्मा रहा था. मंजन कौन करता है यहाँ पे यार, मुझे ये बताओ पहले. If you do मंजन, I'll pray for you. This is a joke. Don't mind अगर आप मंजन करते हो, बहुत अच्छा करते हो, प्रभु आपको बहुत आशीष दे. हाँ भाई. Oh, hallelujah. मैं दूरदर्शन में चला गया था. You know, when the usher is trying to catch you, somebody else fell next to them, so they went to catch them and then you fell. जब अशर आपको सेवा के समय पकड़ने आ रहा था, उसके बगल में कोई और गिर रहा था, वो उनको पकड़ने चला गया, इसलिए आप गिर पड़े. You know, we have trivial reasons to be offended with the church. बहुत ही तुच्छ कारण हैं जिसके कारण लोग ठोकर खाते हैं कलीसिया से. Somebody got offended because we have lights here. किसी को इसलिए खेद हुआ था क्योंकि यहाँ पर रोशनी ज्यादा है. भाई घर में अंधेरे में बैठते हो क्या? Do you sit in the dark in your house? Right? So, how many here ever had a bad day in life? हम में से कितने लोग हैं यहाँ पर जिनके साथ किसी ना किसी दिन बुरा हुआ? कुछ लोग के साथ नहीं हुआ है. प्रभु आपको बचा कर रखे. आप कहाँ रहते हो? मुझे उस कॉलोनी में घर खरीदना है. लोग चर्च आके ऑफेंड हो जाते हैं, आप अपनी गली में ऑफेंड नहीं आज तक यार. Yeah, so they get offended with people. वो लोगों से नाराज हो जाते हैं. And maybe somebody was having a bad day in their own life. या उनका दिन बुरा चल रहा था उस दिन. कोई बीवी से लड़के आ गया. Somebody fought with his wife. And अब पार्किंग में उसको खड़ा कर दिया. And he was asked to volunteer in the parking lot. जहाँ पे दिल्ली में 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है. Where it's 35 degree Celsius in Delhi. 45. 45. और उसको चक्कर आ रहा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको देख के हंसेगा. And he's having his head is spinning and you are expecting that he'll smile at you. भाई पानी पूछ लो उसको पहले. First ask him, does he want a glass of कि water? भाई बीवी ने ब्रेकफास्ट दिया था आज. Ask him, did your wife serve you even breakfast? Right? See, this is why we need. हम लोग ना वो लोग हैं जिनको बहुत अनुग्रह मिला है. We are people who have received so much grace. पर हम देते नहीं हैं. Even after receiving so much, we don't give. होता सबके पास है, पर देता कोई नहीं है. भी सीखें. Let it be done to you exactly as that. Amen. आपके साथ वैसा ही हो. Amen. So, if by assembling I will not waver. अगर संतों के साथ मिलने से मैं डगमगाऊंगा नहीं. What happens if I don't assemble? क्या होगा कि अगर मैं संतों की संगति में ना हूं तो? Wavering becomes very easy. तो डगमगाना बहुत आसान हो जाएगा. Oh no, but I have YouTube. You see. लेकिन मैं तो YouTube में देखता हूं. I can watch today. I can watch Mark of the Beast teaching. Tomorrow I can watch anything at that. See, Christian Netflix से दूर रहें. जनहित में जारी. हमें लगता है YouTube तो है, आसानी से मैं ठक ठक करूंगा और मार्क ऑफ द बीस्ट देख लूंगा या ये शिक्षा देख लूंगा या वो शिक्षा देख लूंगा. लेकिन जो YouTube की Netflix है उससे हम दूर रहें तो अच्छा है. See, the thing is, बात ये है, each one of you who's connected to FOLJ Church online,
हमें से जो कोई FOLJ चर्च से ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, because you are genuinely not in Delhi क्योंकि आप वास्तविकता में दिल्ली में नहीं or हो NCR या NCR में, and you want to be here और आप चाहते हैं कि यहाँ पर आएं and you are jealous of these guys और आप जलन ईर्ष्या रखते हैं इन लोगों से who can actually easily come here. कि वो आसानी से यहाँ आ सकते हैं, Let me say this. मैं आपको बताना चाहता हूँ Wherever you are sitting, कि जहाँ कहीं भी आप हैं, you can receive exactly same grace that is upon this house right where you are. मैं आपको बताना चाहता हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं, आपको वही अनुग्रह मिलेगा जो इस भवन के ऊपर है, आपके उस स्थान में ही. But that's when you are planted in FOLJ, being whatever city, whatever country you're in. क्योंकि आप इसी माध्यम से FOLJ में बोए गए हैं, आप जिस शहर जिस प्रदेश में हैं. But if you're in Delhi, लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हैं, NCR, NCR में हैं, and you got hurt because जिसने ब्रश नहीं किया था वो मुस्कुराया नहीं, लेकिन आप किसी वॉलंटियर से ठोकर खा गए या नाराज हो गए, then you need to learn to give grace first. Amen. तो आपको सीखना चाहिए कि अनुग्रह कैसे देते हैं. Amen. Amen. Okay, let's read James 4 verse 7. हम याकूब उसका 4 का 7 पढ़ेंगे. Therefore submit to God. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ. Resist the devil शैतान का सामना करो and he will flee from you. और वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा. कोई विश्वासी ऐसा नहीं मिलेगा जिससे आप सवाल करो तो बोले I don't submit to God. You will not find any believer when you ask him a question, he will say मैं तो परमेश्वर के अधीन हुई नहीं. Every believer will say, oh, I submit to God. हर एक विश्वासी कहता है अरे मैं तो परमेश्वर के अधीन हूं. One day, एक दिन I told Yashika, मैंने पास्टर याशिका से बोला, Yash, I love you. यही बोला. यही बोला, मैंने बोला. So she asked me a question. तो उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा, How? कैसे? उसका आंसर तो था ही नहीं अपने पास. I didn't have an answer to that. So when a believer says, I submit to God, तो जब एक विश्वासी कहता है कि मैं परमेश्वर के अधीन हूं, my question is how? मैं पूछता हूं कैसे? How? कैसे? उसका आंसर तो है ही नहीं अपने पास, right? Many don't have an answer to that. Let's look at this verse in the book in amplified version and you'll get the answer. इसका एम्पलीफाइड अनुवाद में देखेंगे और ये उत्तर देगा हमें. So submit to the authority of God. यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के, ब्रैकेट में लिखा है अधिकार के अधीन हो जाओ And resist the devil. और शैतान का सामना करो. Stand firm against him. यानी उसके खिलाफ दृढ़ खड़े हो जाओ. And then he might flee from you. और आगे क्या ये लिखा है कि शायद वो तुमसे, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा. So the guarantee of Psalm 91, जो भजन 91 है उसका पक्का करना, the guarantee of James 4:7 और याकूब 4:7 इस बात को पक्के से होना, is conditional. ये एक शर्त लागू है उस पर. The love of God is unconditional. परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त का है. The promises of God, however, लेकिन परमेश्वर के वायदे कंडीशन योग्यता वाली नहीं है. इट्स नॉट अबाउट द एबिलिटी, वो वाली कंडीशन नहीं है. But it's the condition of your part in that promise in order for you to inherit it. लेकिन शर्त यह है कि आपका उसमें क्या हिस्सा था कि आप उसको हासिल कर सके उस वायदे को. If in Dhamal अगर धमाल मूवी की बात करें तो there was a house, अगर एक घर है there was a door, और उसमें दरवाजा होता and Ritesh Deshmukh went in और रितेश देशमुख उस घर के अंदर दरवाजे के पीछे जाकर and he छुपता bolted from inside. और अंदर से कुंडी लगा लेता. What was his name? What bhai? Whatever bhai. Would the bad guy find him? तो जो चोर उचक्के उसके पीछे पड़े थे, क्या उसको ढूंढ पाते? No. नहीं. No. Simple. So many Christians are hiding behind Christ, leaving the house of God behind this excuse that they are offended. और कई लोग जो हैं यीशु के पीछे तो छुपे हुए हैं, लेकिन वो परमेश्वर के भवन से अलग हैं इस बहाने के साथ कि मैं नाराज हो गया था. I did not marry the head of Yashika.
जब पास्टर सामर्थ ने शादी की, उन्होंने सिर्फ पास्टर याशिका के सर से नहीं की थी। I married all of her. मैंने उन्हें संपूर्णता में, उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें संपूर्णता में शादी की थी। Okay? Not all of us are same height. हर किसी का कद एक जैसा नहीं होता। Not all of us are same attributes, features, talents, everything. सबके व्यवहार अलग अलग होते हैं, गुण अलग अलग होते हैं। The church also is different. कलीसिया भी अलग है, अलग Because अलग। the organs, the members of the church are different. Amen. क्योंकि कलीसिया के अंग अलग अलग हैं। But when you got married to Christ लेकिन जब हमारा विवाह यीशु मसीह के संग हुआ, and you say you love Christ, और आप कहते हैं कि आप यीशु के साथ प्यार करते हैं, you don't have a choice. तो आपके साथ आपके पास कोई चुनाव नहीं रहता। You have to love the body. आपको उसकी देह से भी प्यार करना पड़ता है। Amen. Amen? Amen. Okay, let me come back to this quickly. So, submit to the authority of God. तो इस अनुवाद में देखिए तो वो कहता है कि परमेश्वर के अधिकारी के अधिकार के अधीन में रहो। Just give me all your attention for some more time, and ध्यान दें इस समय मेरी this ओर, is going to impart something to you. और मैं आपके ऊपर कुछ इस समय उंडेलूंगा। You will receive an impartation. मैं नहीं उंडेल रहा हूँ. The impartation is coming. और जो अभिषेक है वो आप प्राप्त कर लेंगे जैसे वो आता है। The revelation is taught, but it has to be caught. प्रकाशन सिखाया तो जाता है, लेकिन आपको पकड़ना भी पड़ता So है। when I'm teaching, you're catching. जब मैं सिखा रहा हूँ आपको पकड़ना है, When you catch, you receive the impartation. और जब आप उस प्रकाशन को पकड़ लोगे अभिषेक भी साथ में आएगा। My words are spirit and life. क्योंकि मेरे वचन आत्मा और जीवन है। When you hear my words, you receive the spirit that is upon me, which is the spirit of my father, Apostle Ankit Sajwan. तो जब आप मुझे सुनते हैं, मेरे उस बात को पकड़ते हैं, तो उस आत्मा को भी पाते हैं जो मेरे ऊपर है, जो मेरे पिता प्रेरित अंकित सजवान से आया है। Okay, so a Roman centurion came to Jesus. एक रोमी सूबेदार यीशु के पास आया, And he said, my servant is sick, you can come to my, you know, Jesus said, I'll come to your house. He said, you don't have to come to my house. Just say a word, because I am a man under authority. तो वो सूबेदार यीशु से कहता है मेरा नौकर बीमार है। यीशु कहता है मैं तुम्हारे घर आता हूँ। वो कहता है नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना वचन भेज दीजिए और वो चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूँ जो अधिकार के अधीन है। Those of you who understand, a centurion you can say is like a lieutenant आप में in the से Indian army. जैसे भारतीय सेना में एक लेफ्टिनेंट होता है, एक सेंचुरियन या सूबेदार वैसा ही था। Does the lieutenant directly report to the Prime Minister of India? No. क्या जो आर्मी का लेफ्टिनेंट है वो क्या डायरेक्टली प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है? नहीं। But is he under the authority of the government of India? लेकिन क्या वो भारतीय सरकार के अधिकार के अधीन है? हाँ। So when the Roman centurion is saying, I am a man under authority, is he under the authority of the emperor directly or under the Roman Empire? तो जब ये सूबेदार रोमी सूबेदार कहता है कि मैं अधिकार के अधीन हूँ, क्या वो रोमी राजा यानी कैसर के सीधे अधीन है या फिर रोमी सरकार के अधीन है? How many of you have no idea what I'm talking about? Okay, thank you. The spirit of truth. Amen. Let me make it simple. मैं आसान बनाता हूँ इसको। The centurion जो सूबेदार है was reporting to his boss, वो अपने मालिक को रिपोर्ट करता है, who was reporting to his boss, वो जो अपने मालिक को रिपोर्ट करता who was है, reporting to his boss, जो अपने मालिक का उत्तरदायी है, who was reporting to his authority, और जो अपने अधिकारी को रिपोर्ट करता who है, reported to his authority, which was the king. जो अपने अधिकारी यानी राजा को रिपोर्ट करता है। Now, we are a part of a kingdom, an empire. और हम लोग भी एक राज्य, एक साम्राज्य का हिस्सा हैं। Our king, हमारा राजा, he is our king. यीशु मसीह हमारा राजा है, But we don't report to him directly. लेकिन हम सीधे यीशु मसीह को रिपोर्ट नहीं करते। आमेन। Amen? वाह। See, can I tell you something? I don't know how many, the church is not ready for these secrets. कई लोग और कलीसिया इन रहस्यों के लिए तैयार नहीं है अब तक। If any of your dad, any one of your, English is such a funny language. If your dad went to a shop and paid 10,000 to them, rupees to them, अगर आपके पिता किसी दुकान गए और वहां पर 10,000 रुपए दाम चुकाए, and they came and told you, I have already given him advance, you go and get whatever you want. और वो आपसे आकर कहते हैं कि मैंने दुकानदार को एडवांस में पैसे दे दिए, तुम्हें जो चाहे खरीदना है खरीद लो। When you go to that shop,
जब आप उस दुकान जाएंगे will you still need to pay? तो आपको क्या दाम चुकाने की जरूरत होगी? The victories your authorities have won are free for you. जो जय आपके ऊपर अधिकारियों ने जीत ली है वो आपके लिए मुफ्त में है. Amen. In the older times, पुराने ज़माने tell me में. this, did the Queen of England come to annex to colonize India? क्या इंग्लैंड की रानी यहाँ पर आई थी उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए, कब्जा करने के लिए इंडिया पे? कब्जा करने के लिए? No, right? She sent a viceroy. उसने अपने एक अधिकारी अपने एक Yeah, अधिकारी को भेजा. सेनापति को भेजा. Did the viceroy actually go and annex different kingdoms himself? क्या जो वाइसरॉय था या जो सेनापति था उसने जाकर खुद सेनाओं पर कब्जा किया था या राज्यों पर कब्जा किया Who था? won the victory for them? किसने जीता जय उनके The लिए? army. जो ब्रिटिश की सेना थी उन्होंने. You are the army of the Lord. उसी तरह आप परमेश्वर की सेना हैं The battle will be won by you in your life. और आप जीतेंगे अपने जीवन की लड़ाइयों को. But whatever area comes under your viceroy or your authority, लेकिन जो भी क्षेत्र आपके ऊपर जो अधिकारी है उसके अधीन आता है, you don't have to go fight there again. Amen. आपको दोबारा जाकर वहां पर लड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि उन्होंने पहले से ही जय पा ली है. I don't know how many of you understand what I'm saying. मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं. The man of God has anointed and kept before over us. परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त जो व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ रखा है परमेश्वर ने, One of the graces of his life एक अनुग्रह जो उनके जीवन का है is a grace of no lack. वो है कभी ना कमी होने वाला अनुग्रह. I am under that grace मैं उस अनुग्रह के अधीन हूं and I know what I'm talking about. और मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं. The only thing I don't have in my life जो बात मेरे जीवन में नहीं है अब, is the thing I said I don't want. वो सिर्फ वो बातें हैं जो मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए. The Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है, I shall not be in want. मैं कभी घटी में ना रहूंगा. But if I want something, लेकिन अगर मुझे कुछ चाहिए it's provided for. वो मेरे लिए पहले से ही दे दिया गया है. Now, the Lord is my chief shepherd तो जो प्रभु यीशु मसीह है वो मेरा मुख्य चरवाहा है. who has kept a shepherd over me. आमेन. जिसने एक चरवाहा प्रेरित अंकित के रूप में मेरे ऊपर रखा है. When I submit to my shepherd, तो जब मैं अपने चरवाहे के अधीन आता हूं I submit to the chief shepherd. तो मैं मुख्य चरवाहे के अधीन आ जाता हूं. That's not difficult, right? ये तो मुश्किल नहीं था समझने में. Now, if I want, as a sheep, I want better quality grass. अगर एक भेड़ होने के नाते मुझे अच्छी घास चाहिए, Whose responsibility is it? किसकी जिम्मेदारी है ये? Yeah, my shepherds. मेरे चरवाहे की. If, okay, please know, that's why the Bible says, let not many of you become teachers because you'll have a stricter judgment. Those who watch over your soul, let them do it with joy. Sorry, please. तो इस प्रकार से याकूब में लिखा हुआ है कि हर कोई शिक्षक ना बन जाए क्योंकि उन पर कड़े रूप से न्याय होगा और जो आपके ऊपर रखवाली रखता है वो आनंद से भरा रहे. So when God ordains people over you, तो परमेश्वर जब आपके ऊपर किसी को निर्धारित करता है, He holds them accountable. परमेश्वर उनसे लेखा जोखा लेता है. How many of you ever told your mother, मम्मी फिर से टिंडे बना दिए यार घिया बना दिया, करेला बना दिया, नहीं खाना मुझे. Right? कितने लोगों ने अपनी माँ से कहा है टिंडे घिया या ककड़ी जो भी बना दी, आई डोंट वांट टू ईट दैट. You should be so thankful you get fresh, hot bread, food from this storehouse every week when you come. हमें धन्यवादित होना चाहिए कि हमेशा ताजा गरम खाना यहाँ पर मिलता है रविवार दर रविवार और भी दिनों में. When your mom sweats in the kitchen in extreme summers, हमारी माँ जब अत्यंत गर्मी में भी पूरे पसीने से खाना बना रही होती but है. you just complain कि भिंडी बना दिया फिर से. क्या हम शिकायत करते हैं कि you've just made भिंडी today? You know, you don't know the sweat she has put behind it.
हम समझ नहीं पाते जो मेहनत, जो पसीना उसके पीछे बहाया। You don't know the sweat and tears and prayers that have gone behind the storehouse. हम नहीं जानते जो पसीना, जो आंसू, जो प्रार्थनाएं यहाँ से भोजन देने के लिए जो बहाई जाती हैं। The bread that comes to you is not cheap, जो रोटी हमारे पास आती है वो सस्ती नहीं है, is not stale, और वो पुरानी नहीं है, बासी नहीं है, it's not stinking. और वो बदबूदार नहीं है। It is the bread of life. वो जीवन की रोटी है। Whoever will partake in this storehouse, जो कोई इस भंडारे से खाएगा you will have life in you. उसके अंदर जीवन बहता रहेगा। My Father has not built this place to be a place of condemnation. और मेरे पिता ने ये जो बनाया है, ये स्थान दोष लगाने का स्थान नहीं है, But a place of lifting people up from victim mindset to conqueror mindset. आमेन। और लेकिन ये जो जगह बनाई है वो एक पीड़ित मनावस्था से एक जयवंत मनावस्था में लाने की है। Today morning when my mother was preaching, आज सुबह जब मेरी माँ यहाँ से प्रचार कर रही थी, I knew in my spirit. मैं अपनी आत्मा में जानता था। You know, I don't know how to explain this, मैं नहीं जानता इसको कैसे समझाऊं, but it's yeah. You understand? खुड़की दिमाग. How many UPites? How many खुड़की दिमाग समझते हो? Right? कि हार नहीं मानूंगा. like a stubborn mind that I won't give up. In the morning when my mother was preaching, I got this download that this dominion mindset is being downloaded. Amen. आज सुबह जब मेरी माँ यहाँ से प्रचार कर रही थी, ये प्रकाशन मेरे ऊपर उतर आया कि एक अधिकार की मनोवस्था उतर रही है। It's not adhikar, it's like प्रभुता करना, the will to not come under anything. It's that will that I cannot come under. I cannot be succumbed by anything. एक इस प्रकार की इच्छा का प्रकाशन आ रहा था कि मैं किसी भी बात से दबाए नहीं जाऊंगा। So if you've been succumbed by things in life, अगर आपके जीवन में चीजें आपको परास्त कर रही हैं या आपको विनाश में ले जा रही हैं, because I stand in the same grace of my father and mother, क्योंकि मैं अपने माता पिता के अनुग्रह के अधीन खड़ा हूं, I say मैं that इस समय बोलता हूं this dominion mindset is being downloaded. कि ये प्रभु कि जय के बिना ना रुकने का, आगे बढ़ते रहने की मानसिकता जो है उतर रही है आज। This dominion mindset is being downloaded. जयवंत होने की मानसिकता आज उतर रही है, That will never allow you again to be under anything. जो आपको किसी बात के अधीन रहने की अनुमति नहीं देगी। You will not be the tail. आप पूंछ नहीं बने रहोगे, You will be the head आप सर बन जाओगे, because you have known his name. क्योंकि आपने उसके नाम को जाना है। The only place where he has kept you वही स्थान, वो स्थान जहां उसने आपको रखा है, is at the top. वो है ऊंचे पर, सबसे ऊपर। That dominion mandate, that dominion mindset बिना हारे जय में बढ़ते रहने की is being downloaded. इस समय आप पर उंडेली जा रही है। Amen. Amen. So I would encourage you to, when you go home, listen to today morning's teaching. तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि जब आप घर जाएं और आज सुबह की शिक्षा को जब सुने, Listen knowing that the words that you're hearing are containers of dominion mandate, dominion mindset. आमेन। इस बात को ध्यान रखते हुए सुने कि जो शब्द आप सुन रहे हैं वो बिना किसी बात के दबाए जाए बिना मैं जय में चलूं वैसा अधिकार मुझे दे रहे हैं। Now I have a quick question for you and I promise I'll try and end after this. एक जल्दी से सवाल पूछूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी समाप्त भी करूं। If the Roman centurion अगर जो रोमी सूबेदार था was under authority वो अधिकार के अधीन तो था, and he went to a soldier and said, "Come," और वो अपने एक सेनापति के पास जाता और कहता आओ, would his soldier come क्या उसका सेनानी आता and say to one, "Go," and would he go? और वो अपने सेनापति से कहता जाओ तो वो जाता, Yes. है ना? Why? क्यों? Because he's a man under authority. क्योंकि वो भी अधिकार के अधीन है। When the centurion is speaking, जब जो सूबेदार बात कर रहा है, the soldiers are listening as if the emperor is commanding. वो सेनानी वहां खड़े हुए हैं और वो ऐसे सुनते हैं जैसे खुद राजा वो उनको आदेश दे रहा है।
But if any other dude just got up one day लेकिन अगर कोई ऐरा गैरा ऐसे ही खड़ा हो जाए and went to the Roman army और रोमियो की सेना के पास जाए and said to one of the soldiers, "Come," और एक सेनानी के पास उससे बोले आओ, what would the soldier do? वो क्या करेगा? Right? Okay, quick question. What if the Roman centurion अगर जो रोमी सूबेदार है was sent to an enemy kingdom? अगर उसको दुश्मन के राज्य में भेजा जाए, Would he be seen as the hand of the Roman Empire? क्या वो रोमी सरकार का भुजबल की तरह नहीं देखा जाएगा? What if some dude just randomly went to the enemy camp? लेकिन कोई भी ऐरा गैरा दुश्मन के खेमे में चला जाए तो क्या होगा? Yeah. So this is the most powerful thing you're gonna hear tonight. तो आज जो सबसे सामर्थी बात है वो आज आप सुनने वाले हो। There are two kinds of people in the kingdom. परमेश्वर के राज्य में दो तरह के लोग हैं। There are only two kind of people in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में केवल दो प्रकार के लोग हैं। One, पहले who are submitted under authority. जो अधिकार के अधीन समर्पित हैं। Two, दूसरे who are vagabonds, unsubmissive, not under authority. जो बंजारों की तरह भटकते रहते हैं, किसी के अधीन नहीं रहते और कभी एक जगह नहीं टिकते। They don't answer to man, they answer to God directly. I don't know how. वो कहते हैं कि मैं किसी मनुष्य को जवाब नहीं देता या लेखा जोखा नहीं रखता, मैं सीधे परमेश्वर से बात करता हूं और मुझे पता नहीं कैसे करते हैं वो। The people who are submitted to authority, जो लोग अधिकारियों के अधीन होते हैं, they do mighty exploits for the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज्य के लिए महान काम करते हैं। Like I said, the British army won major victories in this country. जैसे मैंने कहा कि ब्रिटिश की सेना ने इस देश में कई बड़े जय जीते। Those who are unsubmitted to God's authority, लेकिन जो परमेश्वर के अधिकारियों के अधीन नहीं रहते, they don't do exploits. वो कोई भी महान काम तो करते ही नहीं है। They get exploited by the enemy. शैतान उनका फायदा उठाता है, उनके साथ दुरुपयोग करता है, उनकी वाट लगा देता है। Please don't let this thing bring fear in your heart. I'm sorry if this is what it sounded like, but I just want to put something so simply before you. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को सुनकर अपने दिल में डर ना आने दें, और मैं माफी चाहता हूं अगर ऐसा आपको लग रहा हो, लेकिन मैं इस सरल बात को आपको बताना चाहता हूं कि अधीनता में रहने से हम क्या लाभ पा सकते हैं। The day you say, जिस दिन हम कहते हैं I am a man under authority, कि मैं अधिकारियों के अधीन व्यक्ति हूं, no demon can look at you कोई भी शत्रु आपकी ओर देख नहीं सकता, without trembling. बिना कांपे आपकी ओर नहीं देख सकता। Have you heard कि पास्टर को थप्पड़ मार दिया उस भूत ने? Yeah. आपने कभी ऐसे सुना है कि that demon hit the pastor? You know, when I was a young believer, I got very afraid of casting out demons. I'm being very honest with you. जब मैं नया विश्वासी था, मैं दुष्ट आत्माओं को निकालने में बहुत डरता था। Because I heard these stories कि थप्पड़ मार देते हैं हम दुष्ट आत्मा। क्योंकि मैंने ऐसी कहानियां सुनी हैं कि दुष्ट आत्मा निकल के पास्टरों को थप्पड़ मार देते थे। कि पास्टर गया था वहां पे, थप्पड़ खा के आया वहां से। That one pastor, he got slapped by the demon and he came back. There are only two kinds of people in the kingdom. सिर्फ दो प्रकार के लोग हैं परमेश्वर के राज्य में। Those who are submitted to God's authority, जो परमेश्वर के अधिकारियों के अधीन हैं, and those who are not submitted to God's authority. और जो नहीं है अधीन। I don't care what you call yourself in the physical realm. मैं नहीं इस बात की परवाह नहीं करता आप अपने आप को इस संसार में क्या बुलाते हो। You call yourself Shri, Ati Shri, Reverend, something. I'm sorry I'm saying it like this. माफ कीजिए अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप अपने आप को श्री या कोई भी सरने कोई भी टाइटल लगाकर बुलाते हैं, But if you do not submit to God's authority, लेकिन अगर आप परमेश्वर के अधिकारियों के अधीन नहीं हैं, the spirit, the demonic world, जो दुष्टों का जो मंडल है, sees such people as exploitation targets. वो उनको दुरुपयोग करने का टारगेट, एक शिकार बनाते हैं। But even the tiniest of us, हम में से जो सबसे छोटा भी है,
when he stands before the kingdom of darkness, हम में से जो सबसे कमजोर दिखने वाला भी है, जब वो अंधकार के राज्य के सामने खड़ा होता है, they recognize the arm of the Lord behind that. जो व्यक्ति अभी नया नया है लेकिन अधिकारियों के अधीन है, यदि वो भी पर अंधकार के राज्य के सामने खड़ा होता है, वो परमेश्वर के भुजबल की तरह दिखता है. I don't want to boastfully say this, but so I'll give you an example first so you have some reference. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, और मैं इस बात में बड़ाई नहीं करता, अपनी घमंड नहीं दिखाना चाहता. प्रभु के एक जन साउथ इंडिया में, A man of God in the south of India, because he was a man under authority, he understood this principle. क्योंकि वो अधिकारियों के अधीन थे, वो इस सिद्धांत को समझ गए थे. So anytime a demon would manifest, कभी भी कोई भी दुष्ट आत्मा प्रकट होती, he would say, ऐसे ही निकल जा, नहीं तो मुझे अपने स्पिरिचुअल फादर का नाम लेना पड़ेगा. he would say, just get out, otherwise I will have to take out the name of my spiritual father. He's not saying I'll have to say the name of Jesus. वो ये नहीं कह रहा कि मुझे यीशु का नाम लेना पड़ेगा. Please don't be offended. तो आप नाराज ना हो इस बात से या ठोकर ना खाएं. To the sons of Sceva, जो स्कीवा के बेटे थे, the demon said, Paul we know and Jesus we know. वो स्कीवा के बेटों से दुष्ट आत्माओं ने कहा कि पौलुस को हम जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं. Because Paul was a man under authority. क्योंकि पौलुस अधिकारियों के अधीन था. Demons knew him. और शैतान जानते थे इसको. The sons of Sceva जो स्कीवा के बेटे थे, were some random dudes. वो ऐरे गहरे थे, उनका कोई अस्तित्व नहीं था. सही. Those who are submitted जो परमेश्वर के भवन में अधीन है, do mighty exploits. वो महान काम करते हैं. Those who are not submitted जो अधीन नहीं रहते, get exploited by the enemy. शैतान उनके साथ बुरा व्यवहार करता है. So here is a simple but powerful thing that I'll tell you. एक बहुत ही सरल लेकिन सामर्थी बात मैं आपको बताता हूं. As long as you are submitted under the authority of man of God Apostle Ankit Sajwan, जब तक आप प्रेरित अंकित सजवान, जो परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए अधिकारी हैं, उनके अधीन रहते हैं. just to ease you out, who is submitted to Jesus the chief shepherd? जो खुद जो मुख्य चरवाहे हैं, उनके अधीन अधिकार, उस अधिकार के अधीन है. There is not a demon in the whole universe that you will not crush under your feet like a mosquito, like a cockroach. Amen. जब तक आप मुख्य चरवाहे के अधीन, प्रेरित अंकित सजवान के अधीन रहते हैं, आप कोई भी दुष्ट आत्मा इस पूरे ब्रह्मांड में उसको एक मच्छर, एक कॉकरोच के समान उसको रौंद देंगे अपने पैरों के तले. When you're, I am telling you, the day I learned this, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन मैंने इस बात को सीखा, you know this, this one time there was somebody was manifesting, एक बार ऐसा हो रहा था कि दुष्ट आत्मा किसी के अंदर से प्रकट हो रही थी, and I was listening to my father very closely. और मैं अपने पिता प्रेरित अंकित सजवान को सुन रहा था ध्यान से. मेरा एक ही पिता है. His name is Apostle Ankit Sajwan. So I was observing how he casted out that demon. और मैं ध्यान से देख रहा था कि किस तरह से उन्होंने उस दुष्ट आत्मा को निकाला. And this demon was the normal drama, right? और वो दुष्ट आत्मा चीखते चिल्लाते हुए जैसे करते हैं उस तरह निकले. So he went to the demon. और वो उस दुष्ट आत्मा के पास गए. And he said, cockroach, चुप रहे और निकल. He said, cockroach, shut up and get out. Like father, like sons. जैसा बाप वैसा बेटा. So I'm only teaching you what I have tested. मैं आपको वही सिखा रहा हूं जो मैंने खुद परखा है, खुद अभ्यास किया है. Now I know मैं जानता हूं, that I stand under the same grace. मैं जानता हूं कि मैं उसी अनुग्रह के अधीन खड़ा हूं. So this next time, I mean some days later, उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ. there was a demon manifesting. एक दुष्ट आत्मा प्रकट हो रही थी. And I happened to be there. और मैं वहां पर मौजूद था. Guess what I did? मैंने क्या किया? I went. मैं गया. I said, cockroach, shut up and get out. मैंने कहा कॉकरोच, मुंह बंद कर और भाग निकल. Because I'm a man under authority. Hallelujah. हालेलुया. क्योंकि मैं अधिकार के अधीन था, तो हालेलुया, वैसा ही हुआ. The cockroach heard the Lord Jesus Christ. Amen.
कॉकरोच ने मेरी आवाज नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनी मेरे द्वारा, because I am submitted to my Father who submitted to him, and क्योंकि मैं अपने पिता के अधीन हूं जो प्रभु यीशु मसीह के अधीन है और वो ही अधिकार बहता है। if you are submitted to the authority over this house, तो अगर आप इस भवन के अधिकारियों के अधीन समर्पित हो, अधीन हो, devil will not so much so have the permission to lay a finger on you. शैतान को बिल्कुल भी अनुमति नहीं है कि आपके ऊपर एक उंगली भी रखे Or your household. या आपके परिवारजनों पर। You will be far from oppression. आप उसकी दुष्टता से बहुत दूर रहोगे। 1,000 will fall by your side, आपके एक तरफ 1000 गिरेंगे and 10,000 by your right hand, और 10,000 आपके दाईं ओर गिरेंगे, but it will not come near you. लेकिन वो आपके निकट नहीं आएगा। You will not fear आप डरोगे नहीं the arrow that flies by the day, उन तीरों से जो दिन में उड़ते हैं, or the pestilence that destroys at noonday. या वो महारोग जो दिन में उजाड़ता है। You have made the Lord your habitation. क्योंकि परमेश्वर को आपने अपना निवास स्थान बना लिया है। He has given you power उसने आपको सामर्थ दी है to crush every opposition कि आप अपने दुश्मन को अपने पैरों तले रौंद सको। every opposition as simply as you crush an insect under your feet. उस तरह से अपने सामने शैतान को अपने पैरों तले रौंद सको जैसे एक कीड़े को रौंदते हो। Say after me, I am planted in God's house. Devil doesn't stand a chance against me or my family. When I resist, he has to run. मेरे साथ कहें, मैं परमेश्वर के घर में बोया गया हूं। शैतान के पास मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ कोई मौका नहीं है। जब मैं उसका सामना करूं तो उसको भागना ही पड़ता है।